Hello everyone, I'm recording this short clip which may help you to recover your portfolio fast. As you all know that, let me take the small cap index. So as we all know that the small cap index corrected almost 20, I think 19 to 20% from the all-time high. तो according to that, मोस्टली लोगों का जो पोर्टफोलियो डाउन है वो 20 या 25% के आसपास डाउन होगा अगर आपने एग्जिट नहीं लिया है तो in case if you have not exited and you are holding too many stocks, then what you can do in this market, that is I am going to share with you. Now let me first start comparing with the parent index, what actually happening in the market. So this is Nifty chart on daily. What I feel is basically that around at this point, मतलब ये जो भी आपके tops थे, we will take the support at around this range. Okay, so almost I feel that we are near to this correction in this, and even you can see that the pace in the Nifty is slow down compared to the overall small cap. So what structure is there in this parent index is that we are making this lower leg, right? Same thing is happening in the small cap also, but with a greater momentum, that we are still here making the lower leg. In most of the market, when the markets are about to make the bottom, the last leg is always have a panic in that. Okay, so now you have to find out the sectors or the stocks which are not following this last leg, because होता क्या है, जो स्टॉक स्ट्रांग होते हैं, जो सेक्टर स्ट्रांग होता है, उनके अंदर बॉटम फॉर्मेशन पहले ही हो जाता है, और वो जब मार्केट की लास्ट लेग होती है उससे पहले ही वो मतलब ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, राइट? तो इन स्मॉल कैप ऑल्सो, जैसा मैंने आपको बोला कि 16,000 इज वॉट आई एम लुकिंग फॉर एज ए बॉटम इन दिस, एंड जैसा आज हमने देखा भी कि ये गया था 15,700 समथिंग, and it bounced back quite good from I think 3.5% to 1.75%. Right now it's negative 1.75, because this is what I feel this is a good support. इलेक्शन के टाइम का भी एक वो था, तो this will act as a good support at least, नहीं तो छोटा टेम्परेरी तो सपोर्ट आपको ये रहेगा मार्केट का. तो दिस विल बाउंस फ्रॉम दिस जोन इन स्मॉल कैप, बिकॉज वी आर टू मच ओवरसोल्ड ऑल्सो, और बाकी और भी काफ़ी सारे पैरामीटर हैं जिसके भी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से वी कैन सी दैट ए गुड बाउंस कैन कम. ठीक है, अभी आप यहाँ पे जो मैं बहुत ही देसी वे में आपको बताऊंगा, सो दैट कोई भी मतलब ज़्यादा टेक्निकल जो नहीं जानता है वो भी इस चीज़ को समझ सके. तो दीज आर द 3 लाइन्स यू कैन सी. तो दिस ब्लैक वाली लाइन जो है वो आपकी 10 एमा है, दिस रेड लाइन इज 20 एमा, एंड दिस इज योर 200 एमा. आई जस्ट म्यूटेड ऑल द अदर लाइन्स, ये जो है बाकी 50, तो बस 3 लाइन रखिए, 10, 20 एंड 200. ओके, so now we have seen that in small cap and your this one Nifty, we are making this type of lag. The momentum of falling of Nifty is now slow down as compared to the small cap. ठीक है, स्मॉल कैप में आप देखोगे फॉल अभी भी 3.5% अराउंड है, जो कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दिस करेक्शन विल ऑलमोस्ट एंड एट दिस पॉइंट. नाउ योर जॉब इज टू फाइंड आउट द सेक्टर्स और द स्टॉक्स विच आर नॉट फॉलोइंग दिस पैटर्न. मतलब वो डाउन तो आए होंगे, लेकिन जो लास्ट लेग है वो इसका जो ये जो लो है, ये लो आपका ब्रेक नहीं होगा. यू हैव टू फाइंड आउट दैट सेक्टर एंड विच आर बाउंसिंग एट दिस पॉइंट. ठीक है, तो दीज दैट गुड सेक्टर, मतलब जो अपकमिंग जो लीडर्स होंगे वो ये वाली लेग आपकी नहीं बनाएंगे. ओके, दे विल बाउंस फ्रॉम दिस जोन. ओके, तो जैसे मैं एग्जांपल शेयर करता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल PSU banks, राइट? नाउ just if you see in the PSU bank that we are not making the lower low, just like we are making in small cap and this thing. So we have seen a good bounce from this zone. Now PSU banks में आप देखोगे, for example let's see Indian Bank, right? So here you can see that we are now trying to make the higher high. बहुत this is too initial to say that we are making the higher highs, but ऐसा लग रहा है कि we are making the higher highs in this zone. Okay, और भी आप PSU बैंक्स लोगे, फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ इंडिया है, तो यू कैन सी दैट दिस इज अगेन फ्रॉम मेकिंग ए हायर हाई स्टार्टेड इन दिस. तो मोस्टली आपका जो सेक्टर होता है वो वही पिक्चर रेप्लिकेट करता है जो आपका अंदर इंडेक्स में हो रहा होता है, राइट? तो नाउ हाउ टू रिकवर योर पोर्टफोलियो फास्ट, इसके लिए 3-4 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है. पहली चीज़, आपका स्टॉप लॉस एट एनी कॉस्ट 3% से ज़्यादा नहीं होगा. गॉट इट? योर SL शुड बी 3%. ओके,
मैक्स टू मैक्स आपको 4 पोजीशंस रखनी है अपने पोर्टफोलियो के अंदर। आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। अगर वो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अलग है या बहुत बड़े साइज का है तो यू कैन अवॉइड अप्लाइंग दिस इन योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। एंड 4 पोजीशंस रहेंगी आपकी मैक्स, मतलब 25% एलोकेशन। एंड तीसरी जो चीज़ है उसका रिजल्ट और ऐसा कोई भी इवेंट नहीं होना चाहिए आने वाले 1-2 दिन में, ठीक है। और आपका चौथी चीज़ जो रहेगी, दिस ऑल द 4 पोजीशन शुड नॉट बी फ्रॉम द सेम सेक्टर, ओके। ये पोजीशन सारी आपकी सेम सेक्टर से नहीं होगी। ये 4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देन आफ्टर दिस थिंग व्हाट you have to do, you have simply, I'm just giving you the very desi formula, you simply have to buy the stocks which are crossing the 10 or 20, जिनका मतलब crossover आप देखोगे ना, this black line is your 10 EMA and red line is 20 EMA। तो जहाँ पे आपको एक crossover मिल रहा है, you can make the position at this point। in case if you miss this point, तो try to buy the stock when it comes to the, मतलब जहाँ पे जंक्शन पे मिलती है वहाँ पे आपको इसको बाय करना है। एंड ट्राई वन मोर थिंग दैट द स्टॉक शुड बी अबाउट 200 EMA। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ हूँ, फॉर एग्जांपल आई हैव अ गुड पोजीशन इन मैसडॉक, आई ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। The reason why I'm still holding this stock is the basically if you see that we are above the 200 EMA, right? And अभी ऐसे मार्केट करेक्शन के अंदर we are making a upper leg, ठीक है, this not come like this, एंड वी आर अबाउट 10 और 20 EMA, ठीक है। जैसा मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जस्ट यहाँ पे ब्लैक और रेड का क्रॉस ओवर देख रहे हो, तो फ्रॉम द बॉटम आपको नहीं पता कहाँ बॉटम बनेगा, बट वेन एवर दिस क्रॉस ओवर इज फॉर्मिंग यू कैन मेक द पोजिशन एट दिस पॉइंट। एंड इफ आफ्टर दिस क्रॉस ओवर इफ योर स्टॉक इज फेलिंग, सपोज मान लो कि हम यहाँ से फिर लोअर लोज बनाते हैं, तो इन केस इफ योर स्टॉक इज फेलिंग बिलो 10 EMA अगर क्लोज हो रहा है, देन यू हैव टू टेक योर स्टॉप लॉस, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी स्टॉक में आपको शेयर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज बिलो दिस पॉइंट, ठीक है, तो दिस इज योर क्रॉस ओवर पॉइंट इन दिस मैसडॉक। यू सिंपली हैव टू होल्ड द स्टॉक अंटिल एंड अनलेस अगेन द क्रॉस ओवर विल नॉट हैपन। तो एट दिस पॉइंट दिस क्रॉस ओवर हैपेंड इन दिस पॉइंट। तो आपको क्या करना है, सिंपली जब आपकी 4 पोजिशंस रहेंगी मार्केट के अंदर 25%, तो आपको फोकस रहेगा उन पोजिशंस को आप देख पाओगे। अभी राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यू आर होल्डिंग टू मैनी स्टॉक्स, ठीक है। अभी वो जो होल्डिंग्स है ना, पुरानी होल्डिंग, उनसे आपके लॉसेस रिकवर नहीं होंगे, भूल जाओ। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ क्यों नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज अ डीलिंग, इवन आई बॉट दिस डीलिंग एट अराउंड दिस पॉइंट। द रीजन बिहाइंड दिस इज मेकिंग ए गुड पैटर्न, मतलब डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था एंड दिस इज अ गुड क्रॉस ओवर एंड सब कुछ अच्छा था यहाँ पे, ठीक है। दिस फेल एट दिस पॉइंट। नाउ इफ यू आर होल्डिंग दिस स्टॉक, आपको लगता है कि यहाँ पे फटाफट आ जाएगा, ये नहीं आएगा। Got it? You have to book the losses in such type of stock and you have to make the concentrated position with the money you have in few stock, in 4 stock। The thing is आपको ये ध्यान रखना है कि उनका रिजल्ट ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे इसी स्टॉक की हम बात करते हैं, सिंपली मैं जैसे मान लो ये स्टॉक नीचे गिर रहा है, यू डोंट नो वेयर इट विल मेक द बॉटम, सिंपली वेयर द क्रॉस ओवर इज हैपनिंग, राइट, 10 और 20 EMA, यू हैव टू बाय दिस स्टॉक अंटिल एंड अनलेस दिस क्रॉस ओवर अगेन नॉट हैपेंड। दिस इज सिंपल स्ट्रेटेजी एम टेलिंग यू। अगर आपको टेक्निकल्स नहीं आता तो भी ये आपके लिए काम करेगा। ओनली इन दिस मार्केट, व्हेन दिस मार्केट इज करेक्टिंग, तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू फाइंड आउट द बिग गेनर्स। तो इससे होगा क्या, सपोज फ्रॉम योर 4 पोजिशन इफ यू कैप्चर 20% इन एनी ऑफ योर 2 पोजिशन, ठीक है, आपके 50% पोर्टफोलियो पे भी आपने 20% के 2 स्टॉक्स भी अगर आपने कैप्चर कर लिए, दैट गिव यू इंस्टेंट, मतलब 2 to 3 days और ए वीकली, तो योर पोर्टफोलियो विल डायरेक्टली जम्प टू द 10%, ठीक है। आई एम अगेन रिपीटिंग इन हिंदी सो दैट सबको समझ में आए चीज़। अगर आपने 4 पोजीशंस बनाई है, तो अगर आपने इन 4 में से 2 स्टॉक्स भी आपके 20% आपने, मतलब जो मूव्स हैं वो कैप्चर कर लिए, जो कि बहुत आसान है इस मार्केट के अंदर, तो आपका पोर्टफोलियो सीधा 10% जंप हो जाएगा। बट अगर आप पुराने स्टॉक्स को होल्ड करके सोचोगे कि वो रिकवर होंगे, तो वो सब पैटर्न सब बिगड़ चुके हैं। उस समय किसी ने भी रिकमेंड किया था, चाहे मेरे रिकमेंड हो या कोई भी रिकमेंड किसी के थ्रू भी हो, वो पैटर्न सब बिगड़ चुके हैं। तो दैट पैटर्न्स विल नॉट वर्क इन दिस मार्केट, ओके। हो सकता है रैंडम मूव आ जाए, बट वो पैटर्न्स काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 रुपये किसी स्टॉक में रखे और राइट नाउ 20% लॉस, अगर वो 80 रुपीज़ हो गए हैं, तो आपको ये नहीं देखना कि मुझे तो नहीं इसी स्टॉक से रिकवर करना है 20 रुपीज़, जस्ट बिकॉज दिस हॉर्स इज नाउ वीक, ये घोड़ा आपका कमजोर हो चुका है। वॉट यू नीड टू डू इज ये 80 रुपीज़ उठाओ, ठीक है, लॉस बुक करो, और उससे जो स्ट्रॉन्ग हॉर्स उस समय अभी जो तैयार हो रहा है वो आप खरीदो, ठीक है। वो स्टॉक्स जो पहले अच्छे पैटर्न्स थे वो बिगड़ चुके हैं, वो नहीं चलेंगे, अब कुछ नए लीडर्स बाहर निकल के आएंगे। गॉट इट? तो सिंपली यू हैव टू बुक द लॉसेज एंड यू हैव टू शिफ्ट टू द
स्ट्रॉन्ग स्टॉक, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दिमाग से निकाल दो कि नहीं, आई हैव टू रिकवर फ्रॉम दैट स्टॉक ओनली। अगर आप ऐसा करोगे तो ये मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा, उसके बाद तक भी कहीं स्टॉक्स आपके रिकवर नहीं होंगे। सिंपली यू हैव द मेन मोटिव शुड बी यू हैव टू मेक द मनी इन द मार्केट, राइट। नो मैटर कि ए स्टॉक से आए चाहे बी स्टॉक से आए, सिंपली आपके पोर्टफोलियो में स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स रहने चाहिए एट एनी टाइम। गॉट इट। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे PSU बैंक्स का मैंने आपको दिखाया कि दिस PSU बैंक इज नॉट फॉलोइंग the index now, whether your index is making the lower low, but now this index is making higher high. For that reason जो मैंने अभी लिखा था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और PSUs that will do good in this market from this point। तो जैसे आप ये देखोगे इसमें भी सेम चीज़ यही है, ठीक है। वी हैव सीन ए गुड जंप टुडे। आपको सिंपली क्या करना है, इवन यू कैन फॉलो दिस इन द इंडेक्स ऑल्सो। जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, आफ्टर दिस क्रॉस ओवर जस्ट होल्ड दिस द स्टॉक और वट एवर द इंडेक्स है जो भी है, आपको सिंपली वो चीज़ करना है। तो जैसे ये अभी 10 EMA के ऊपर आ गया, राइट। तो यू कैन वेट और यू कैन सी कि ये जैसे 10 और 20 EMA का क्रॉस ओवर होता है तो यू कैन मेक ए गुड पोजीशन इन द बैंकिंग सेक्टर में। आप कोई भी स्टॉक्स उठा सकते हो, बट डोंट ट्राई टू डू दिस इन FNO। ओके। तो फॉर एग्जांपल कुछ प्राइवेट बैंक्स जो मुझे अच्छे लग रहे हैं इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल दिस ICICI बैंक इज ऑलरेडी मेड दिस पैटर्न, ठीक है। राइट नाउ दिस इज ट्रेडिंग अबाउट 20 EMA, तो दिस इज द गुड पैटर्न, तो यू कैन बाय दिस टाइप ऑफ स्टॉक। अगेन आई एम रिपीटिंग जो मैं कह रहा हूँ, सिंपली क्रॉस ओवर्स जो हो रहे हैं, यू हैव टू बाय दिस क्रॉस ओवर। ये बहुत देसी तरीका बता रहा हूँ, यू डोंट नीड एनी टेक्निकल नॉलेज फॉर दिस, राइट। राइट, ओके। तो सिंपली आपको जैसे जंप आ रहा है क्रॉस ओवर खरीदो, मेक 20%, एंड तब तक व्हेन सम स्टॉक इज डूइंग 10 to 20%, तब तक आप दूसरे ऐसे सेटअप तैयार करके रखो। तो सिंपली आप विद इन ए 2 weeks टाइम के अंदर अगर आप ऐसे जंप करते जा रहे हो 20-20 करके, तो यू कैन ईजिली टेक योर पोर्टफोलियो टू द ऑल टाइम हाई विद इन आई थिंक 15 or 20 days, ओके। बट अगर आपको कोई स्टॉक नहीं मिल रहा है, सपोज इन केस वी स्टार्ट मेक ए लोअर लोज इन स्मॉल कैप विच आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू गो बिलो 16,000, तो आपको सिंपली क्या करना है, दैट 4 एलोकेशंस जो आपको हैं उसको आपको कैश में रखना है जब तक आपको नहीं समझ में आता है, इस तरह के पैटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, ओके। लेट मी शेयर फ्यू मोर एग्जांपल्स विद यू जो मेरे रेडार में भी हैं, जिनको मैं, जैसे क्या अभी मैजडॉक के अंदर मेरी बड़ी पोजीशन है, तो दैट इज जस्ट फॉर ए सेफ्टी पर्पस के हिसाब से रखा हुआ है। कोई भी अच्छा स्टॉक मुझे लगेगा, आई सिंपली सेल द मैजडॉक एंड बाय दिस स्टॉक। फॉर एग्जांपल दिस SRF है, राइट। अभी आप इसमें देखो, वी आर ट्रेडिंग अबव ऑल द EMAs एंड वी हैव मेक ए गुड गैप, एंड ये गैप फिल भी नहीं हुआ, तो दैट इज अ गुड इंडिकेशन दैट शोज दैट यहाँ से बहुत बड़ा एक ट्रेंड सेट होगा। देखो लास्ट के 8 महीने सभी ट्रेडर्स के लिए, चाहे कितना ही कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर क्यों ना हो, दैट वॉज ए नॉट गुड टाइम बिकॉज देर आर द नो ट्रेंड्स अप ट्रेंड इन द मार्केट, ठीक है। ऐसे ऐसे इस तरह के मूव्स थे, राइट। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर टू गेन इन सच टाइप ऑफ मार्केट। मे बी आफ्टर दिस करेक्शन वी विल सी द गुड अप ट्रेंड्स इन द मार्केट अगेन। देखो उसके पीछे एक लॉजिक है, मैं आपको भी बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर मैं वो समझाने जाऊँगा तो। देखो इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, आपका जो लास्ट करेक्शन का जो EMAs जहाँ पे आपका RSI जो मतलब आपका करेक्ट होता है ना, वो दैट इज़ अराउंड 30 या 40 की रेंज में होता है, एंड वी आर अगेन एट दिस पॉइंट। अगर आप यहाँ देखोगे ना, तो एक डाइवर्जेंस वाला पार्ट आ जाता है, वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा इफ़ आई शेयर एट दिस मोमेंट। आप सब्सक्राइब कर लो ताकि फ्यूचर में मैं जब भी बनाऊंगा तो आई विल पोस्ट दिस ऑन दिस। बट इफ़ यू सी तो देर इज़ अ गुड क्लस्टर ऑन द वीकली चार्ट ऑन द स्मॉल कैप एट दिस पॉइंट, तो वो समहाउ इसके नीचे नहीं जाएगा, वो इधर ही इधर कहीं ना कहीं करेगा, बिकॉज नाउ देर इज़ नॉट मच रूम ऑल्सो एट दिस पॉइंट। तो यहाँ तो हम यहाँ से बाउंस लेंगे कि अच्छा देन 10 to 20 वीकली एंड देन अगेन वी हैव टू फॉल, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट होगा, right? But at this moment the stocks are almost exhausted to give a new lower lows, right? तो फॉर दैट रीज़न अभी जैसे इसके अंदर बैंक ऑफ इंडिया की तो बात करें, JK सीमेंट है, दिस स्टॉक इज लुकिंग गुड टू मी, बट आफ्टर दिस सच ए बिग करेक्शन द स्टॉक इज, ठीक है, द करेक्शन। देखो मैंने कहा ना, ये क्रॉस ओवर आपका पहले हो जाएगा, द गुड स्टॉक्स विल मेक दिस क्रॉस ओवर और मेक द बॉटम फर्स्ट इन द मार्केट, तो दिस स्टॉक इज लुकिंग गुड, ओके। फिर आप रेलवेज देख लो, तो रेलवेज आई फील दैट रेलवेज विल डू गुड फ्रॉम दिस पॉइंट। रीज़न क्या है, सिंपली आप ये देखो, वी आर नॉट फॉलोइंग द पेरेंट इंडेक्स, वी आर मेकिंग द
higher rise, trying to do make the high rise. अभी now here this is the consolidation of 10, 20 and 200 EMA. Once this candle cross ना, यहाँ पे आप एक हाई बनाओगे ना, the music will change on the Twitter or overall in the market or the TV और सब जगह म्यूजिक चेंज हो जाएगा, बिकॉज इट विल कंसिडर्ड एज ए, समझ गए आप, हायर हाई. तो जैसे ये पैटर्न में आप एक बार ये क्रॉस करोगे ना लास्ट लेग का हाई, देन द म्यूजिक विल चेंज ऑन ऑल ओवर द मीडिया और सब कुछ चेंज हो जाएगा, राइट. वो पूरा पैनिक वैनिक वाली चीज़ निकल जाएगी. तो सेम वे द दिस RVNL इज इन माई रडार. दिस इज अबाउट टू मेक ए क्रॉस ओवर इन दिस, राइट. उसके अलावा आप जैसे ये, ठीक है, अभी मैं इन स्टॉक्स को प्रेफर नहीं करूँगा जो कि स्मॉल कैप्स स्टॉक है, बिकॉज दे मे टेक टाइम. सिंपली दिस स्टॉक अगर आप देखोगे, दिस स्टॉक वाज ट्राइंग टू डू द 10 or 20, ट्राइंग टू डू द क्लोज अबव दिस 10-20 EMA, दैट्स व्हाई दिस इज इन माय रडार. तो जैसे ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इंडस टावर. नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस स्टॉक. दिस इज अ क्रॉस ओवर, राइट. 10 और 20 ब्लैक और रेड लाइन का क्रॉस ओवर था. आफ्टर दिस बॉटम, एट दिस पॉइंट नो बडी नोज कि नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा. क्रॉस ओवर होने दो. आफ्टर दिस क्रॉस ओवर, वेन एवर द बेस्ट time is to buy the stock when the stocks come to near to the 10 or 20 EMA. So today this is at a very good location. So if you want to buy this stock, or you can just put this stock in watch list. If you find good momentum in this stock, so you can make a entry in such type of stock, right. So in short, let me again explaining you, जैसे metal sector है, right. तो this is although going down, but this is still making the मतलब हायर हाइज तो तब बोलेंगे जब ये इस तरह का पैटर्न आपका क्रॉस करे. बट ठीक है, दिस लेग इज नॉट दैट वी कंपेयर टू द लास्ट लेग. तो समवेयर दिस करेक्शन इज अबाउट टू एंड, बट लेट इट हैपन, इसको होने देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे. जो मैं आपको कह रहा हूँ, आई थिंक ये 10 और 20 EMA वाला आपको बहुत क्लियर हो गया होगा. सिंपली एट दिस पॉइंट यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, राइट, एट दिस जंक्शन. ठीक है, हाउ दिस मोमेंटम कम, वंस दिस क्रॉस ओवर हैपन, उसके बाद आप देखो, not a single time this 10 or 20 crossover happened till this point. यहाँ तक आपका crossover नहीं हुआ. तो simply I just intentionally put stop this lines to 50, और ये आप चाहो तो ये draw कर सकते हो. but in this market this 10 or 20 will do a very good job for you to recover your portfolio with the faster paces. Okay, but again you have to consider कि results नहीं होने चाहिए stocks के अंदर. चारों स्टॉक किसी एक सेक्टर से नहीं होने चाहिए, ठीक है. और थोड़ा सा आपको नज़र बना के रखना है उन स्टॉक्स के ऊपर, चारों के ऊपर. एंड मोस्टली ट्राई करो कि वो स्टॉक्स किसी की रिकमेंडेशन पे आप ले रहे हो, नॉट ए इशू, बट आपको ये देखना है कि जो मैंने कंसेप्ट आपको बोला है वो फॉलो होना चाहिए उसके अंदर. उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है. फॉर एग्जांपल RSI होता है, आपका फीबो होता है, डार्वेक्स बॉक्स होता है. देयर आर टू मैनी थिंग्स, बट आई एम जस्ट शेयरिंग यू द सिंपल फार्मूला विच कैन ईजिली टेक योर पोर्टफोलियो टू ए हायर हाइज. ठीक है, आपका एटलीस्ट ये लॉस का पार्ट पूरा कवर हो जाएगा. बट विद द कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो, अगर आप बहुत सारे स्टॉक्स रख के बैठे हो, ये चीज़ नहीं होगा. गॉट इट. तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू.